Good morning, students. Today we will discuss about absorption of digested food according to digestion and absorption in human digestive system. Okay, so absorption is the process by which end product of digestion, minerals, vitamins, water, etc. इसके पहले हमने डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल का डाइजेशन उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में एंड प्रोडक्ट के रूप में हमने पढ़ा, डिस्कस किया। अब डाइजेस्टिव गट में इनका एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में, कौन से फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, ये हम देखेंगे। सो minerals, vitamins, water, etc. are absorbed through the mucosa of the alimentary canal into blood streams and limbs. Okay, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो ब्लड के कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज के, वेंस के, उनके द्वारा और लिम्फ के जो वेसल्स होते हैं उनके द्वारा इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन nutrient molecular are taken into the cell of living organism and it take place in the following some parts of the body. Absorption in the buccal cavity and esophagus और buccal cavity में किस किस चीज़ का absorption होता है? Normally no absorption of food takes place here. Okay, however certain medicines may be absorbed into the blood through the mucous membrane. ओके, नॉर्मली किसी भी फूड पार्टिकल्स का इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बट जो हम मेडिसिन्स खाते हैं जो कि डिजॉल्वेबल होता है उनका इन पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में इसको मिक्स कर दिया जाता है। एंड एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, वाटर, एल्कोहल, इनऑर्गेनिक salt, glucose and some drugs are absorbed by the stomach wall, but here little amount of water are absorbed, not completely absorbed. Okay, and absorption in small intestine, most of the digested foodstuffs are absorbed in the small intestine. maximum डाइजेस्टेड फूड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट तक, एंडिंग तक कंप्लीट हो जाता है। और अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड स्टफ जाता है वो टोटली एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ओके, To increase the absorption surface area, large number of villi are found in the small intestine. Villi is a finger-like structure, here you saw, and beside microvilli are also found on the surface of cell of mucosa layer, and each cell contains up to 600 microvilli. Okay, this increases the cell surface by 20 times. Due to presence of villi and microvilli, the surface area of small intestine is increased by 600 times. माइक्रोविली के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया 20 टाइम इंक्रीज हो जाता है। एंड माइक्रोविली एंड विली को अगर हम खोल के फैलाएं पूरा, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 600 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। According to an estimate, the total area of small intestine is about 250 square meter, and for the longest period the food stay in small intestine. Cells of small intestine wall are highly absorptive, and most of the digested food is absorbed by small intestine. Okay, carbohydrate after conversion into glucose are absorbed by the villi. Glucose reaches the liver by hepatic portal vein and is stored as glycogen. Okay,
and protein, after they are broken into amino acids by enzymes, are absorbed into the blood and conveyed to the liver, and fatty acids and glycerol are also absorbed by the lacteals villi of the small intestine and are then combined to form saturated fats. जो लिम्फ वेसल का स्ट्रक्चर विली के अंदर पाया जाता है विच इज कॉल्ड लैक्टियस, इसके द्वारा जो फैट का स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के लिए सेचुरेटेड फैट इससे बनते हैं. एंड एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? नो डाइजेस्टेड फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन एज वी अर्ली डिस्कस्ड. थ्रू इट्स mucous membrane capable of absorbing glucose and salt, but only water is absorbed here. Okay, मैंने जब पहले बताया था कि मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बाकी किसी भी फूड स्टफ का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता है. ओके, एंड द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इनटू द लिविंग सेल by two way, passive absorption and active absorption. What is the passive absorption? Such types of absorption of food takes place by physical process like diffusion and osmosis. Okay, energy is not required for passive absorption. किसी भी प्रकार का एनर्जी लाइक एटीपी एनर्जी एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है. During diffusion, the nutrient must be at higher concentration in the intestinal lumen than inside the cell, and nutrients molecules should be small and water soluble. Diffusion continues as long as difference in concentration persists. Vitamins, purines and pyrimidines are absorbed this way. ठीक है, विटामिन्स, प्यूरिन एंड pyrimidines जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं. एंड व्हाट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन? ड्यूरिंग एक्टिव एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड स्टफ मूव फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू सेल अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट. आप लोगों ने डिफ्यूज़न के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा है. व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न? अगर कोई मॉलिक्यूल बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एनर्जी के स्प्रीडली फैल जाता है ना, बिना किसी रुकावट के, सो इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. एंड अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में? डिफ्यूज़न के अगेंस्ट, डिफ्यूज़न ग्रेडियंट जो होता है उसके अगेंस्ट एटीपी एनर्जी को यूज़ करके एब्जॉर्ब किया जा रहा है. सो इट इज़ अ एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन कंज्यूम्स एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय डाइफॉस्फोरिलेशन ऑफ एटीपी. सोडियम आयंस, फैट्स, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस वे विच इज़ प्रोवाइडेड बाय डाइफॉस्फोरिलेशन ऑफ ATP. Okay, and next is the assimilation of food. Nutrients which are absorbed are assimilated in the different part of the body. जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव ट्रैक में अपने स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में एसाइमिलेशन के लिए भेज दिया जाता है. एसाइमिलेशन मतलब बॉडी के लिए उसको अगेन यूज़ करना. अमीनो एसिड विच हैव कम इनटू द लीवर गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विथ ब्लड सर्कुलेशन. ईच ऑर्गन एब्जॉर्ब सम अमीनो एसिड एज पर इट्स रिक्वायरमेंट एंड चेंजेस इट इनटू प्रोटोप्लाज्म. ओके, सेल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एमिनो एसिड्स उस तक पहुंचाया गया है उसको प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए
प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट करके यूज़ करता है। इफ़ अमीनो एसिड्स आर मोर देन रिक्वायरमेंट, chemical reaction takes place in the liver and amino acids are converted into glucose and ammonia. Okay, and this ammonia is then converted into urea। ऑर्निथिन साइकिल में इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक्सेस अमोनिया को, इन लीवर विच ग्रोस टू किडनीज with the blood circulation and excreted from the body form of urine. Excess amount of glucose is also stored in the liver as glycogen, and when required by the body it is converted into again glucose. Fat is also stored in the liver or adipose tissues and bones, and if required it can be oxidized to yield energy. ओके, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से एटीपी देता है एंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके ये क्रेब्स साइकिल में चले जाता है। फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू बीटा कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ये है ना। अमीनो एसिड भी डीएमिनेशन के द्वारा एटीपी एनर्जी देता है एंड अल्फा कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये सभी जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं और क्रेब्स साइकिल के थ्रू एटीपी फार्मेशन करते हैं, एटीपी एनर्जी बॉडी को देते हैं। एंड द फाइनल प्रोसेस इज इजेशन और एक्सक्रीशन। द फीकल मैटर इज कलेक्टेड इन द distal part of the large intestine before reaching to the rectum। ओके, जो हमने फूड मटेरियल लिया है, जो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसको डाइजेस्ट करके स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट में सेल तक पहुंचा दिया गया। अब जो बचा वो फीकल मैटर होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी देर तक ये रेस्ट करता है रेक्टम में पहुंचने से पहले। द रिमूवल ऑफ द फीकस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इजेशन और डिफेक्शन और एक्सक्रीशन। ड्यू टू द accumulation of large amount of fecus, the rectum contract, which results in the elimination of fecus outside the body। ओके, जब रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है तो इसके मसल्स के कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको बॉडी के बाहर डाल दिया जाता है। एंड इन हर्बिवोरस एनिमल्स comparatively higher amount of fecus matter is produced in comparison of carnivores, because in their food cellulose are present, and इसका जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी मुश्किल से होता है। सो इसका जो रेशेस होते हैं, है ना, सेल्यूलोज का, ये फीकल मैटर ज़्यादा बनाते हैं compared to carnivorous। This is because about 98% animals protein present in food material are absorbed by carnivores of water from food. As a result, the fecal matter dries and become harder in large intestine. This situation is known as constipation, and the reserve condition persist in case of high rate of peristaltic movement. A person may release out the fecal matter more frequently, and this situation is known as diarrhea। ओके, सो ह्यूमन बॉडी में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।